Hello dear students, welcome back to our another lecture of biology techniques, that is SDS PAGE. SDS PAGE, it stands for sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis. So let's see introductory part about SDS PAGE. So first question is, what is SDS? SDS, it stands for sodium dodecyl sulfate and it is a type of detergent which is negatively charged. ठीक है, ये एक डिटर्जेंट का टाइप है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, it act as a detergent means actually what it does, it breaks the protein structure, it denatures the protein structure. If the protein structure is secondary, tertiary or quaternary, so it break the secondary, tertiary and quaternary structure into the linear form, into the primary form. That is the meaning of detergent, or that is the action of this detergent. That is, it denature the protein and bring it into the linear form. So it is used to denature and linearize the proteins. It is coated, or it coats the protein with negatively charged. As this detergent is negatively charged, तो जब ये प्रोटीन को ब्रेक करता है, see this is the folded form of the protein और it is present in the secondary और tertiary structure. तो ये जब हम इस folded प्रोटीन के ऊपर डिटर्जेंट की ट्रीटमेंट देते हैं, so it breaks down this protein, it denatures the protein and surround that protein with the negative charge. ठीक है, मतलब SDS इस प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है. SDS ये खुद निगेटिव चार्ज है तो ये प्रोटीन्स को भी निगेटिव चार्ज देता है. ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ SDS. SDS stands for sodium dodecyl sulfate. It is a type of detergent which denatures the protein and convert folded protein into the linear form and bind with that protein and covers that protein with the negative charge. Okay. Next, what is PAGE? PAGE stands for polyacrylamide gel electrophoresis. It is a type of gel electrophoresis and in this we use the polyacrylamide gel, so it is known as PAGE. Okay, this SDS PAGE is differentiated into two systems. First is continuous SDS PAGE and second is discontinuous SDS PAGE. Now what is this continuous SDS PAGE? अब continuous means continuity, okay, सातत्य. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी यूज जस्ट वन टाइप ऑफ जेल. ओके, मतलब हम यहाँ पर पॉलीअक्राइलामाइड जेल यूज करते हैं और उसकी पोर साइज ये सिमिलर होती है. और एक बार हमने जेल डाल दी तो देर इज नो यूज, और हम वापस जेल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते इन द कंटिन्यूस SDS पेज. बट अपोजिट इज द केस विथ डिसकंटिन्यूस. डिसकंटिन्यूस में हमें दो जेल्स बनानी पड़ती है, मीन्स वी हैव टू प्रिपेयर द पॉलीअक्राइलामाइड जेल बट हैविंग डिफरेंट पोर साइज. ओके, एक में हम जेल का कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे, एक में हम जेल का कॉन्सेंट्रेशन ये ज़्यादा डालेंगे. ओके, तो हम यहाँ पर दो टाइप्स के जेल्स बनाते हैं. पॉलीअक्राइलामाइड ही होती है लेकिन उन दोनों में कॉन्सेंट्रेशन का वेरिएशन होता है जिस वजह से आपकी पोर साइज ये डिफरेंट होती है. ओके, लार्ज और स्मॉल. और यहाँ पर हम जेल ये दो बार ऐड करते हैं, डिसकंटिन्यूसली ऐड करते हैं, सो इट इज नोन एज डिसकंटिन्यूस SDS पेज. और कंटिन्यूस में हम एक ही टाइप की जेल बनाते हैं, एक ही पोर साइज की जेल बनाते हैं और एक बार ऐड कर दी देन it is completed. But in discontinuous you have to prepare two types of gel having two different pore size or having different concentration of gel, and here we have to add gel twice time. Okay, दो बार हमें यहाँ पर जेल ऐड करनी पड़ती है, इसीलिए it is termed as discontinuous SDS
पेज. ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 फॉर्म्स या फिर 2 टाइप्स में हम जेल ऐड करते हैं. सो वो 2 टाइप्स कौन से हैं? फर्स्ट इज स्टैकिंग जेल एंड सेकेंड इज सेपरेटिंग जेल. ओके, फर्स्ट इज स्टैकिंग एंड सेकेंड इज सेपरेटिंग जेल. अब यहाँ पर होता क्या है? इन द स्टैकिंग जेल वी विल सी द डायग्राम. तो जो ऊपर का लेयर है इट इज़ द वर्टिकल पोजिशन. ठीक है, ये जो जेल SDS पे जो कैरी आउट होता है इट इज कैरिड आउट इन द वर्टिकल पोजिशन. ओके, सो स्टैकिंग जेल it is present at the top layer, it is present to the top side of the apparatus and downwards है resolving gel को ही हम बोलते हैं separating gel. ठीक है, stacking gel और सेकेंड है रिजॉल्विंग जेल विच इज प्रेजेंट एट द बॉटम साइड. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? और इट इज द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूअस SDS पेज बिकॉज हियर वी यूज 2 टाइप्स ऑफ और 2 कॉन्सेंट्रेशन टाइप्स ऑफ जेल. तो पहले देखते हैं स्टैकिंग जेल विच इज प्रेजेंट एट द टॉप लेयर. इसका जो एरिया होता है वो स्मॉल एरिया होता है एज कंपेयर टू द रिजॉल्विंग जेल. ओके, so this stacking gel, in this concentration of acrylamide is less. यहाँ पर स्टैकिंग जेल पे जो कॉन्सेंट्रेशन होता है एक्रिलअमाइड जेल का इट इज लेस. ओके, एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्रिलअमाइड इज लेस दैट इज 5%, द पोर साइज इज मोर. जितना कॉन्सेंट्रेशन लेस होगा उतनी पोर साइज ज्यादा होगी. ठीक है, so pore size is more and pH of this gel is 6.8. pH कितना है? 6.8. नेक्स्ट इज रिजॉल्विंग जेल. यहाँ पर एरिया इसका ज़्यादा होता है, इसी को हम सेपरेटिंग जेल भी बोलते हैं विच इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ एपरेटस. इट इज ऑपोजिट ऑफ स्टैकिंग जेल. यहाँ पर concentration of acrylamide is more, that is 12%. Okay, as concentration of acrylamide is more, pore size of gel is less and pH is 8.8. Okay, so that is the difference between stacking gel and resolving gel. 3 points आपको याद रखने हैं. पहला है concentration of acrylamide in stacking gel is less, that is 5%. Okay, second, as concentration is less pore size is more and pH is 6.8. resolving gel में क्या याद रखेंगे? concentration of acrylamide is more, therefore pore size is less. more मतलब कितना है? 12% और pH है इसका 8.8 and it is the type of discontinuous SDS page. Why? Because here we add or here we prepare 2 gels. First is stacking and second is resolving. और जो कंटिन्यूस होती है, कंटिन्यूस का एग्जांपल है एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. वहाँ पर हम एक ही टाइप का जेल बनाते हैं, एक ही पोर साइज का जेल बनाते हैं. ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैकिंग जेल एंड सेपरेटिंग जेल. हायर द कॉन्सेंट्रेशन स्मॉलर द साइज ऑफ पोर्स एंड लेस कॉन्सेंट्रेशन लार्जर साइज ऑफ पोर्स. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल. यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कौन से बेसिस पर सेपरेट होते हैं? सो इन दिस मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर यहाँ पर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स सेपरेट होते हैं. एंड SDS पेज इट इज मोस्टली एंड कॉमनली यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन with the help of electric field. Okay, so it separates the protein in an electric field. और यहाँ पर प्रोटीन माइग्रेट होते हैं थ्रू द सेमी सॉलिड मेम्ब्रेन और सेमी सॉलिड जेल with the help of the electric field, and in this molecules flow at different rates depending on the molecular size or we can say depending on the molecular weight. ठीक है, molecular weight के basis पर पार्टिकल्स या फिर प्रोटीन्स सेपरेट होते हैं. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट.
Now, what are the components of this SDS page? The component required are glass plates, comb, clamp, sample, buffer, SDS and glycerol. Okay, तो इसके अलावा भी कुछ requirements हैं that we will see in further slides. So these are the certain requirements required for or required to carry out the SDS page. ये देखिए vertical arrangement है. ओके, दिस इज द वर्टिकल अरेंजमेंट. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हॉरिजॉन्टल थी और एसडीएस पेज में इट इज वर्टिकल टाइप ऑफ द अरेंजमेंट. सो फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ जेल. प्रिपरेशन ऑफ जेल, ये जेल आपको लोड करनी है, ये जेल आपको पोर करनी है, ऐड करनी है ऑन टू दैट apparatus. So first you have to clean the plates and combs, sterilize the plates and combs, set up the plates on the rack, pour the separating gel, pour the stacking gel and carry out this SDS page. अब ये सब क्या है ये हम in detail देखते हैं. So let's start with the procedure or process of SDS page. अगर हम इस प्रोसेस को डिवाइड करें तो इट इज डिवाइडेड मेनली इनटू टू टाइप्स परफॉर्मिंग में. तो पहला है प्रिपरेशन ऑफ जेल एंड सेकेंड इज प्रिपरेशन ऑफ सैंपल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ जेल. सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू पुट द ग्लास प्लेट्स ऑन कास्टिंग फ्रेम, देन वी पुट द कास्टिंग फ्रेम ऑन कास्टिंग स्ट्रैंड. तो सबसे पहले हमें करना है ग्लास प्लेट्स हमें कास्टिंग फ्रेम में ऐड करने हैं. ओके, लेट्स सी द डायग्राम. एज आई टोल्ड कि फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्लास प्लेट्स. तो ये जो आपको ग्लास फॉर्म में दिख रहा है ट्रांसपेरेंट, इट इज़ नोन एज द ग्लास प्लेट्स. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो है ये ग्लास प्लेट्स हैं और जो ग्रीन कलर में साइड में दिखाया है इट इज़ नोन एज द कास्टिंग फ्रेम. Okay, so first what you have done, you have fitted this glass plate into the casting frame. आपने glass plate fit की है इस casting frame में. Okay, this is the first step. Second, between glass plates we put the comb and mark 1 centimeter below comb for separating gel. क्यों हम मार्क करते हैं, ताकि हम वहाँ तक रिजॉल्विंग जेल ऐड कर सके. ओके, तो सेकेंड स्टेप आपकी क्या है, यू हैव टू फिट दिस ग्लास प्लेट along with the casting frame into the casting stand. ओके, सबसे पहले आपने ग्लास प्लेट फिट की कास्टिंग फ्रेम में, उसके बाद ये पूरा आपको फिट करना है कास्टिंग स्टैंड में. ओके, इस तरीके से आप फिट करेंगे एंड देन यू हैव टू प्लेस द कोम. ओके, दिस अपर पार्ट इज नोन एज कोम. दिस कोम विल फॉर्म द वेल्स. तो ये कोम आपको फिट करना है और उसके बाद आपको ऊपर से मार्किंग करनी है कोम के 1 सेंटीमीटर बिलो. ओके, यू हैव टू पुट द मार्किंग 1 सेंटीमीटर बिलो द कोम सो दैट आप जब आपकी सेपरेटिंग जेल डालेंगे, ओके, नीचे होती है सेपरेटिंग जेल, तो सेपरेटिंग जेल आपको इस मार्किंग तक ही ऐड करनी है. ओके, तो सबसे पहले आप सेपरेटिंग जेल ऐड करेंगे अप टू दिस मार्किंग एंड देन यू विल ऐड दी स्टैकिंग जेल, ओके, फ्रॉम अपसाइड. गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस आर दी स्टेप्स, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप. देन वी विल चेक फॉर द लीकेज बाय एडिंग वाटर. जब हमारी ये असेंबली फिक्स हो जाती है, ये प्रॉपरली फिक्स हुआ है या नहीं, वो हम कैसे चेक करेंगे, वी विल ऐड द डिस्टिल्ड वाटर. अगर लीकेज नहीं है तो हम जेल ऐड करेंगे, अगर लीकेज है तो फिर से हम ये असेंबली ऐड करेंगे. ओके, और इसे फिट करेंगे. सी, देन वी विल चेक इफ देयर इज नो लीकेज, देन वी विल ऐड आवर रिजॉल्विंग जेल अप टू दिस मार्किंग. ओके, इसके बाद अब हमें रिजॉल्विंग जेल बनानी है, यानी कि सेपरेटिंग जेल बनानी है. Okay, so how we will prepare this resolving gel or separating gel? For that we will require the acrylamide. Okay, सबसे पहले हमें acrylamide लगेगा.
अब अक्राइल अमाइड का फंक्शन क्या है, रोल क्या है? इट इज द इनर्ट मटेरियल. ओके, अक्राइल अमाइड, इट इज द inert material where we run the protein and it does not interact with our protein sample. तो अक्राइल अमाइड ये एक इनर्ट मटेरियल है जिसकी हम जेल फॉर्म करते हैं और उसके ऊपर हम हमारा प्रोटीन रन करते हैं, और ये अक्राइल अमाइड जेल प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं करता है. ठीक है, सो दैट इज द रोल ऑफ अक्राइल अमाइड. और व्हाई वी यूज द अक्राइल अमाइड? इट इज द इनर्ट मटेरियल and when we run the protein it does not interact with the protein sample. Next is 1.5 molar tris solution. उसके बाद हम ट्रिस सॉल्यूशन ऐड करते हैं जिसका pH ये 8.8 रखा जाता है. ओके, सो ट्रिस सॉल्यूशन किस लिए, इसका रोल क्या है? It maintains the pH of the gel. It is the buffer and it maintains the pH of gel, that is 8.8. Okay, next we add the detergent called SDS, sodium dodecyl sulfate. अब ये क्या करता है? It is a detergent and it is used to break the non-covalent bond between the proteins. ठीक है, ये क्या करता है? नॉन कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है बिटवीन द प्रोटीन्स एंड कन्वर्ट द सेकेंडरी और टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इनटू द लीनियर फॉर्म और इनटू द प्राइमरी फॉर्म. और जब प्रोटीन्स ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाते हैं तब ये एसडीएस मॉलिक्यूल उसके साथ बाइंड होता है और उस प्रोटीन को कवर करता है विद द निगेटिव चार्ज. प्रोटीन कौन से भी चार्ज का होने दो, वेदर इट इज पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल चार्ज, लेकिन ये एसडीएस जब बाइंड होगा तब वो प्रोटीन को कवर करेगा विद द निगेटिव चार्ज. ओके, दैट इज द फंक्शन ऑफ ऑल दिस थ्री रिएजेंट्स. किस तरीके से ये काम करता है ये हम देखते हैं. सी प्रोटीन ये जो होता है इट इज इन द फोल्डेड फॉर्म. ओके, दिस प्रोटीन इज इन द फोल्डेड फॉर्म और ये फोल्डेड फॉर्म joined है. दिस प्रोटीन्स आर joined by the non-covalent interactions like hydrogen bond, hydrophobic interactions, ionic bond और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं. एसएच और एसएस बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं जो इस फोल्डिंग को मेंटेन रखते हैं. ओके, तो ये एसडीएस क्या करता है? एसडीएस इनके ऊपर एक्ट करता है और सभी बॉन्ड ब्रेक कर देता है. इट ब्रेक्स ऑल द बॉन्ड और खुद जाकर ये बाइंड हो जाता है. ओके, निगेटिव चार्ज एसडीएस ये बाइंड हो जाता है और प्रोटीन को सराउंड करता है बाय द निगेटिव चार्ज. तो ये फंक्शन है एसडीएस डिटर्जेंट का. ओके, नेक्स्ट व्हाट वी डू एट द लास्टली हम क्या ऐड करते हैं? ये तीनों रिएजेंट्स ऐड करने के बाद लास्टली हम ऐड करते हैं डिस्टिल्ड वाटर. ओके, वी ऐड द डिस्टिल्ड वाटर and then we add the APS, that is ammonium persulfate and TMAID. TMAID means इसका फुल फॉर्म है NNNN टेट्रा मिथिल इथिलीन 1,2-diamine. ओके, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस TMAID. अब इन दोनों का फंक्शन क्या है? APS और TMAID का फंक्शन क्या है? तो इट इनिशिएट्स द पॉलीमराइजेशन. ये क्या करता है? पॉलीमराइजेशन इनिशिएट करता है. मतलब क्या करता है? जेल के बीच में क्रॉस लिंकिंग फॉर्म करता है. क्रॉस लिंकिंग जब फॉर्म होते हैं तब जेल्स को पोर्स मिलते हैं. ओके, जेल क्रिएट्स द पोर्स. So polymerization means what? It initiates the cross linking, it forms the cross linking. Okay, so this APS, it is used for generating the acryl amide free radical. Free radical means what? It generates the radical and form the cross linking between them or polymerization between them. Okay, and this TMAID is the free radical stabilizer which helps this APS to initiate the polymerization, means to initiate the cross linking. इसीलिए हम APS और TMAID ये लास्ट में ऐड करते हैं. सब कुछ ऐड करने के बाद लास्ट में हम APS और TMAID ऐड करते हैं just for initiating the cross linking, for creating the pores. Okay,
एंड देन वी ऐड आवर रिजॉल्विंग जेल। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिजॉल्विंग जेल ऐड करते हैं। कहाँ तक ऐड करेंगे, अप टू द मार्क। ओके, अप टू द मार्क वी विल ऐड आवर रिजॉल्विंग जेल। उसके बाद अब हमारी रिजॉल्विंग, हम फोर्थ स्टेप तक आए हैं। हमने रिजॉल्विंग जेल ऐड की है अप टू द मार्क। हमने प्रिपरेशन देखा है रिजॉल्विंग जेल का, दैट इज नोन एज द सेपरेटिंग जेल। ठीक है, जो बॉटम में हम ऐड करते हैं। ओके, नाउ इट्स टाइम टू ऐड द स्टैकिंग जेल। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टैकिंग जेल ऐड करते हैं। देखिए, हमने पहले रिजॉल्विंग जेल ऐड की है। ओके, वी हैव एडेड द रिजॉल्विंग जेल। आफ्टर एडिशन ऑफ द रिजॉल्विंग जेल वी विल प्लेस द कोम। ठीक है, रिजॉल्विंग जेल ऐड करने के बाद हम कोम उसके ऊपर प्लेस करेंगे और वी विल अलाउ इट टू सॉलिडिफाई। उसे हम सॉलिडिफाई होने देंगे। ठीक है, उसी दौरान हम क्या बनाएंगे, हमारा स्टैकिंग जेल। Okay, so we will prepare the stacking gel. Same components as that of the resolving gel. Same component है, सिर्फ difference किस में है, difference is there in the concentration of acrylamide and pH of buffer. ठीक है, सेम कंपोनेंट्स हैं, अक्राइलअमाइड हम ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अक्राइलअमाइड कैसे होगा, लेस। स्टैकिंग जेल कहाँ प्रेजेंट होती है, एट द टॉप। Okay, so concentration of acrylamide is less, that is 5%. लेस होने की वजह से उसकी पोर साइज ये ज़्यादा होगी और pH 6.8, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में। देन वी विल ऐड 0.5 मोलर ट्रिस सॉल्यूशन, उसका pH 6.8 होना चाहिए। उसके बाद हम डालेंगे SDS और लास्ट में हम डालेंगे डिस्टिल्ड वाटर, अमोनियम परसल्फेट एंड टीमेड, विच गिव्स दी or which initiates the polymerization or cross linking. Okay, so हमारी फिफ्थ स्टेप है टू ऐड द स्टैकिंग जेल विच इज एट द टॉप। ओके, हम फिर जेल ऐड करेंगे और स्लोली जेल हम ऐड करेंगे फ्रॉम द कोम सो दैट बबल फॉर्म ना हो। ओके, so we will put the gel from the side of the comb just to avoid the bubble formation and allow it to solidify. हम उससे डिस्टर्ब नहीं करेंगे जब तक वो दोनों जेल्स हमारे सॉलिडिफाई होते नहीं है तब तक। ओके, अब हमने उसे सॉलिडिफिकेशन के लिए रख दिया है। उसी दौरान हम हमारा सैंपल बना देंगे। ओके, वी विल प्रिपेयर द सैंपल। सो हाउ वी विल प्रिपेयर द सैंपल, सी, अलाउ इट टू सॉलिडिफाई। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन हम सॉलिडिफाई उसे होने देंगे और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन वी विल रिमूव द कोम विच क्रिएट्स द वेल। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन होने के बाद हम कोम निकाल देंगे। कोम निकालने के बाद देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ वेल्स। ओके, अब तक आई होप अब तक आपको समझा होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेल्स फॉर्म होने के बाद वी विल ऐड द रनिंग बफर ऑन टू द जेल। हम क्या करेंगे, रनिंग बफर ऐड करेंगे। अब रनिंग बफर किससे बना है, रनिंग बफर इज मेड फ्रॉम ट्रिस ग्लाइसिन। ओके, ट्रिस ग्लाइसिन, इट इज द बफर। ग्लाइसिन इट इज द अमाइनो एसिड विच इज निगेटिव चार्ज। ठीक है, ग्लाइसिन या अमाइनो एसिड है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है और इसका pH है 8.3। ओके, द pH ऑफ दिस बफर इज 8.3। ये क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड दी क्लोराइड आयंस। क्या करेगा ये, इट विल प्रोवाइड दी क्लोराइड आयंस। सो सॉलिडिफिकेशन होने के बाद वेल्स फॉर्म हुए हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, रनिंग बफर डाल देंगे। ओके, स्लोली वी विल ऐड दी रनिंग बफर विच इज मेड अप ऑफ दिस ट्रिस ग्लाइसिन एंड विच कंटेन्स दी, और the pH of this glycine is, the pH of this buffer is 8.3. Okay, getting my point? And sorry that I told that it contains chloride ion. It doesn't contains the chloride ions. Okay, it doesn't contains the chloride ions. आपके chloride ions ये सैंपल में जब हम बफर ऐड करते हैं उस बफर सॉल्यूशन में क्लोराइड आयंस होता है। ट्रिस ग्लाइसिन, it doesn't contains the chloride ion. It is simple structure whose pH is 8.3. Okay, so that is the running buffer. ये हम कब डालते हैं, आफ्टर सॉलिडिफिकेशन।
Okay, after solidification we add the running buffer which is made up of the stress glycine and the pH of this buffer is 8.3. अब हमें सैंपल लोड करने हैं. नाउ इट्स टाइम टू लोड द सैंपल इनटू द वेल्स along with the प्रोटीन लैडर. जैसे हमने एगेरोस्डेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए लैडर ऐड किया था जिसकी हमें मॉलिक्यूलर वेट, जिसका हमें बेस पेयर नोन था, उसी तरीके से हम यहाँ पर ऐड करेंगे प्रोटीन लैडर जिसका वेट और जिसकी साइज हमें पता होगी. ठीक है, एंड देन वी विल ऐड आवर सैंपल. फॉर एडिंग द सैंपल वी हैव टू प्रिपेयर द सैंपल. तो हम सैंपल कैसे प्रिपेयर करेंगे? वी विल टेक द कवेट और वी विल टेक द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, दैट इज स्टेराइल सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, और उस ट्यूब में है हमारा प्रोटीन सैंपल. ठीक है, उस ट्यूब में है हमारा प्रोटीन सैंपल और उसके ऊपर हम ऐड करेंगे हमारा बफर. ओके, वी विल ऐड द बफर इनटू दिस प्रोटीन सैंपल. अब ये बफर किस चीज़ों से बना है? इट इज़ मेड अप ऑफ ट्रिस HCl. द pH ऑफ दिस बफर इज 6.8. ये ट्रिस HCl क्या करता है, रोल क्या है इसका? इट मेंटेन द pH एंड इट प्रोवाइड द क्लोराइड आयन. ठीक है, यहाँ पर ये क्या करता है? ये क्लोराइड आयन Cl- आयन प्रोवाइड करता है. इसका रोल क्या है? फिर दो रोल है. फर्स्ट है मेंटेन pH और सेकेंड है इट प्रोवाइड द क्लोराइड आयंस, इट प्रोवाइड द Cl- आयंस. नेक्स्ट वी ऐड द SDS, दैट इज डिटर्जेंट. ये क्या करेगा? इट विल मेंटेन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड गिव द निगेटिव चार्ज टू दैट प्रोटीन. ओके, ये उसका फंक्शन है. प्लस it will break the non-covalent bond between the protein and it will maintain the primary structure. It will give the negative charge जो हमने previously देखा. Next is बीटा मरकैप्टोइथेनॉल. बीटा मरकैप्टोइथेनॉल क्या है? ये एक reducing agent है. Okay, it is the reducing agent and it will break the SH bond between the protein. ये क्या करेगा? जो remaining bond है SDS, जो bond break नहीं कर चुका, वो बीटा मरकैप्टोइथेनॉल ब्रेक करेगा. मीन्स व्हाट? इट विल ब्रेक द SH बॉन्ड बिटवीन द प्रोटीन्स. नेक्स्ट वी विल ऐड द ब्रोमोफिनॉल ब्लू. इट इज एन डाई और स्टेन विच इज ऑफ ब्लू कलर. ठीक है, ये ब्लू कलर डाई इट इज यूज फॉर द विजुअलाइजेशन टू आइडेंटिफाई द पोजिशन ऑफ द प्रोटीन. ठीक है, टू आइडेंटिफाई द पोजिशन ऑफ द प्रोटीन वी यूज द BPB, that is bromophenol blue for visualization. Next we add the glycerol. Glycerol ये किस लिए? To provide the viscosity. मतलब जब हम वेल में सैंपल्स लोड करते हैं वो स्लिप ना हो, वो उस वेल के अंदर फर्म रहे. ओके, तो फर्म रहने के लिए we use the glycerol just to provide the viscosity. Then we use the double distilled water. Okay, complete sterilized distilled water हम यूज करते हैं. तो इस तरीके से हमारा सैंपल बन जाता है. सैंपल मतलब हमारा प्रोटीन और उस प्रोटीन के ऊपर हम ऐड करते हैं बफर और वो बफर बना है ट्रीस HCl, SDS, बीटा मरकैप्टोइथेनॉल, BPB, ग्लिसरॉल और डबल डिस्टिल्ड वाटर से. ओके, अप टिल नाउ आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको. उसके बाद वी हैव टू लोड द सैंपल इनटू द वेल्स विद द प्रोटीन लैडर. देन क्लोज द लीड ऑफ द apparatus. क्लोज करना है. अब सब कुछ हमारा सेटअप हो चुका है. वी हैव टू क्लोज द लीड ऑफ द apparatus. अप्लाई द इलेक्ट्रिक करंट एंड सप्लाई विल सैंपल विल स्टार्ट टू रन. व्हेन यू विल अप्लाई द करंट, सैंपल ये रन होगा एंड आफ्टर सर्टन टाइम जब आपको बैंड्स विजुअलाइज होंगे तब आपका सप्लाई ये ऑफ करेंगे. ओके, एंड यू विल ऑब्जर्व फॉर द बैंड फॉर्मेशन. सो यू विल ऑब्जर्व फॉर द बैंड फॉर्मेशन. दिस इज द प्रोटीन लैडर जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, लाइक 7 किलो डाल्टन, 12 किलो डाल्टन, 86 किलो डाल्टन. ओके, तो ये सैंपल्स के साथ आप प्रोटीन लैडर भी ऐड करते हैं. सो दिस इज ऑल. एंड आफ्टर
रनिंग द जेल आफ्टर सर्टन टाइम आपको सी एंड यस यू हैव टू फिट द इलेक्ट्रोड्स भी आपको ज्वाइन करने हैं, पॉजिटिव सॉरी निगेटिव टू पॉजिटिव. रनिंग डायरेक्शन कैसी है, निगेटिव टू पॉजिटिव. ओके, बिकॉज आपका एसडीएस निगेटिव चार्ज है, तो जब वो प्रोटीन को बाइंड होगा वो प्रोटीन्स को सराउंड करेगा विद द निगेटिव चार्ज एंड दिस निगेटिव चार्ज विल माइग्रेट टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. ओके, तो इस तरीके से मूवमेंट होती है. एसडीएस कोटेड लार्ज प्रोटीन माइग्रेट स्लोली. जो लार्जर साइज के प्रोटीन से लार्जर वेट के प्रोटीन है दे विल माइग्रेट स्लोली थ्रू द जेल एंड विच आर लाइट इन वेट which are small in size they will migrate quickly and reach at the bottom of the gel. ठीक है, and the nearer the band to the well the larger the molecular size of the protein. यहीं पर आपको आइडेंटिफाई होता है अगर बैंड एकदम पास में फॉर्म हुआ है वेल के, एकदम नियर फॉर्म हुआ है वेल के, तो इसका मतलब उस प्रोटीन की साइज और उस प्रोटीन का मॉलिकुलर वेट ये लार्ज है, ये ज़्यादा है. अगर वेल से दूर फॉर्म हुआ है बैंड तो इसका मतलब प्रोटीन ये स्मॉल साइज का है और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी स्मॉल है, कम है. ठीक है, सो दिस इज द हाउ यू विल इंटरप्रेट द रिजल्ट्स. एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज लाइक दिस कि आपको जब आप सैंपल लोड करते हैं, ठीक है, सैंपल लोड करते समय यू हैव टू टेक द केयर दैट आपका जो टॉप लेयर है स्टैकिंग जेल का. ओके, योर टॉप लेयर इज ऑफ स्टैकिंग जेल. तो जब आप सैंपल लोड करते हैं तब ये जो लाइन है जो आपने मार्क की थी, दिस ऑल द सैंपल दे मस्ट कम टुगेदर टू दिस स्टैकिंग जेल एंड देन फ्रॉम स्टैकिंग जेल दे आर रन टूवर्ड्स द आवर सेपरेटिंग जेल. मतलब यहाँ पर ये सब साथ में आने चाहिए और उसके बाद ये सेपरेटिंग जेल में सेपरेट आउट होंगे. ओके, सेपरेटिंग जेल नाम ही क्यों दिया है, हियर एक्चुअली प्रोटीन्स गेट सेपरेटेड और स्टैकिंग जेल में इस लाइन में ये सब साथ में आते हैं. ठीक है, सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट. In next lecture we will discuss remaining part of the SDS page. Thank you.